Dear students, welcome to another session of information security. Today our topic is electronic mail security, or in short, email security. What we are going to discuss is pretty good privacy as an example protocol for email security. In short, we call it PGP. We are going to discuss PGP if we want to use it for confidentiality only, or we want to use it for authentication only, or what if we want to use it for both confidentiality and authentication. Next, we are going to discuss the importance of compression, in fact the placement of the compression algorithm in the sequence. So let's start. Pretty good privacy is created by Philip R. Zimmermann, and PGP provides confidentiality and authentication services that can be used for electronic mail and file storage applications. So it is also can be used for storing files on your hard drive or any portable storing device. Why is PGP so popular? First of all, it is available free on a variety of platforms. If you are a programmer and you are making an application that uses email, you can use the PGP free of cost. The algorithms, coded versions of algorithms are available in different classes and libraries. It is based on well-known algorithms. And this is the beauty of security algorithms, which we have already discussed. Not all of them, but all types of them. For example, we have already discussed how same key encryption algorithms work. We have discussed public key, private key algorithms. For example, we have discussed RSA algorithm in that category. We have discussed MD5 algorithms. We have discussed hash functions. The concepts of these algorithms are the same. The algorithms are the same. The sequence, how they are going to be used in different protocols, is different. So PGP is not implementing anything new or anything out of the blue. It is also implementing those already well-established algorithms in a sequence that is unique to PGP. This sequence we are going to discuss in this lecture. A wide range of applicability. PGP is used in a variety of applications to secure stored files, or to secure emails and traveling data. Not developed or controlled by governmental or standardized organizations. Sometimes some algorithms, especially security algorithms, are controlled by different organization or government, and you have to buy a license or authority to use them in your application. This is not the case with PGP. So, operational descriptions. PGP consists of 5 services that are authentication, confidentiality, compression, email compatibility, and segmentations. You already know all these services. Let's have a review. I have already discussed many times that in security there are only two main things. Other things are also important, but there are two main things, that is authentication and confidentiality. Authentication means that message is authentic. Message is from जिसकी तरफ से मैसेज आ रहा है वाकई ही उसी की तरफ से मैसेज आ रहा है. Message should not be altered or changed or delayed while traveling from sender to receiver. These things are made sure in authentication. And confidentiality means if a message is for a particular user, no one can read that message in between. हमने बहुत बार डिस्कस किया कि it is not possible that we can make sure that no one can copy our message in between, but
it can be possible to make it unreadable for the middle parties or hackers or whoever is copying our message. So the only two main things in security is authentication and confidentiality, कि मैसेज जिसके लिए है सिर्फ उसी को मिले, उसी को समझ आए, ठीक है। तो रास्ते में कॉपी होने से तो हम नहीं रोक सकते, तो हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि वो इनक्रिप्टेड हो और उसको सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल रिसीवर है वो ही डिक्रिप्ट कर सके। तो एक चीज़ ये हमें पीजीपी प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ पीजीपी ये प्रोवाइड करता है कि मैसेज के ऊपर सिग्नेचर्स होते हैं, तो रिसीवर को ये चीज़ श्योरिटी हो जाती है कि मैसेज जिसकी तरफ से आया है वाकई ही उसी की तरफ से आया है। वन थिंग, मैसेज हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड और चेंज्ड और डिलीट, ठीक है। ये दो मेन चीज़ें हैं। फिर कंप्रेशन मेक्स अ मैसेज अ बिट स्मॉलर। जब आपने एक जगह से दूसरी जगह कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके अंदर जितनी भी हमारी उसकी कंप्रेशन हो सके या जितना भी उस डाटा को कंप्रेस किया जा सके तो वो ज़्यादा स्पीडीली काम होगा, बैंडविड्थ ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होगी। एक तो ये पर्पज़ है। दूसरा, कंप्रेशन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी ऑफ सम डाटा। ये हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, द प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेशन। फिर और भी हमारे पास ईमेल सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल हैं, जिसके अंदर एसमाइम एक बड़ा पॉपुलर प्रोटोकॉल है। तो उन प्रोटोकॉल्स के साथ कंपैटिबिलिटी कैसे करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेंडिंग पार्टीज यूजिंग पीजीपी एंड रिसीविंग पार्टीज यूजिंग एसमाइम। तो इस चीज़ को भी पीजीपी पे टेक केयर की हुई है कि वो एसमाइम के साथ कंपैटिबल हो। और जो लास्ट उसकी सर्विस है इज सेगमेंटेशन। There is a limit of message size, so PGP has to segment the message in smaller segments to maintain that size. These are the 5 services which are performed by pretty good privacy protocol. So for authentication, here are the steps involved in PGP. The sender creates a message, number 1. Number 2, SHA-1 is used to generate a 160-bit hash code of the message. As I have already talked about that in PGP, we are going to use well-established protocol. SHA-1 is one of them. It is a hash protocol. तो सबसे पहले आपने मैसेज क्रिएट किया, फिर आपने SHA-1 को यूज़ किया उस मैसेज को का हैश कोड जनरेट करने के लिए। हैश कोड जनरेट हो गया, हमें हैश कोड मिल गया, आउटपुट मिल गई SHA-1 से। नेक्स्ट स्टेप में वी आर गोइंग द हैश कोड इज encrypted with RSA using the sender's private key and the result is prepended to the message. In third step, that resulted hash code of the message is going to be encrypted using RSA protocol, that is public private key protocol. We have already discussed it, and the key used while encrypted that hash code is sender's private key. तो ये आप सबको बड़ी अच्छे तरीके से याद होगा कि जिसकी अगर प्राइवेट की से कोई चीज़ एनक्रिप्ट की जाए तो उसकी पब्लिक की से वो चीज़ डिक्रिप्ट होती है। तो अगर सेंडर अपनी प्राइवेट की से एक चीज़ को इनक्रिप्ट करके सेंड कर रहा है तो इसका मतलब रिसीविंग एंड पे वो चीज़ सेंडर की, यानी कि जो सेंडर था उसी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगी। नो अदर की कैन डिक्रिप्ट दैट मैसेज। तो हियर द रीज़न we are going to encrypt the hash code is authentication, which is the title of this slide, not the confidentiality. तो अगर रास्ते में 5 लोग और भी इस मैसेज को कॉपी करते हैं और वो सेंडर की पब्लिक की इज़ अवेलेबल टू एनीवन, पब्लिक की ऑफ एनीवन इज़ अवेलेबल टू एनीबॉडी ऑन द इंटरनेट. सो इफ समवन copied the message, he got the sender's public key from the public key ring from the CA, which we have already discussed, certificate authority, and he can decrypt the message.
but the here we are studying that we need authentication, not the confidentiality. So if he decrypt the message, he can read it, but if he change the message and try to send the message to the receiver, changed message, he cannot create a new hash of new message and encrypt that hash with the sender's private key, because no one can have the private key of any other person. तो जब रिसीवर जो होगा वो उसको रिसीव करेगा और वो रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा, तो हैकर का चेंज किया हुआ मैसेज, क्योंकि हैकर के पास सेंडर की प्राइवेट की थी ही नहीं, तो वो सेंडर की प्राइवेट की से वो इनक्रिप्ट कर ही नहीं सका था। तो इसका मतलब जो चीज़ सेंडर की प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड ही नहीं है, उसको अगर रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा तो वो सही डिक्रिप्शन नहीं होगी। तो जब सही डिक्रिप्शन नहीं होगी तो वो मैसेज जो रिसीव्ड हैश होगा वो कैलकुलेटेड हैश से मैच नहीं करेगा, तो रिसीवर को पता लग जाएगा कि इस मैसेज को रास्ते में चेंज किया गया। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए। स्टेप 4 में लिखा है द रिसीवर यूजेस RSA विद द सेंडर्स पब्लिक की टू डिक्रिप्ट द एंड रिकवर द हैश कोड। जो हैश कोड एनक्रिप्ट होने के बाद मैसेज के साथ लग के आया है उसको रिसीवर ने अलहदा किया और उसको उसने दोबारा RSA एल्गोरिथम में डाला, क्योंकि वो सेंडर की प्राइवेट की से इनक्रिप्टेड था, तो सेंडर की पब्लिक की साथ उसने इनपुट की और हैश जो हुआ डिक्रिप्ट हो गया। अब रिसीवर क्या करेगा, स्टेप नंबर 5 में द रिसीवर जनरेट्स अ न्यू हैश कोड फॉर द मैसेज एंड कंपेयर इट विद द डिक्रिप्टेड हैश कोड। तो वही प्रोसेस करेगा जो रिसीविंग एंड पे, जो सेंडिंग एंड पे सेंडर ने किया था, कि उस मैसेज को इनपुट करेगा SHA-1 में, SHA-1 उसको एक हैश दे देगा। तो एक हैश डाइजेस्ट वो हो गई जो रिसीवर ने SHA-1 में डाल के क्रिएट की, और एक हैश डाइजेस्ट वो है जो साथ चल के आई जिसको रिसीवर ने डिक्रिप्ट करके रखा है। इफ द टू मैच द मैसेज इज एक्सेप्टेबल एंड ऑथेंटिक। तो अगर मैसेज में रास्ते में कोई चेंजेस हुई थी या हैश डाइजेस्ट में चेंज हुई थी तो वो मैच नहीं करेगा। रीजन बीइंग किसी एक भी कोई भी एक हैश रिजल्ट किसी दो मैसेजेस का सेम नहीं हो सकता। तो अगर हैकर ने रास्ते में रिसीवर के मैसेज को सेंडर के मैसेज को चेंज कर दिया था, हैश एज इट इज उसने दोबारा बगैर चेंज किए लगा दिया, क्योंकि उसके पास सेंडर की प्राइवेट की नहीं थी कि वो उसको नया हैश क्रिएट करता और नए हैश को इनक्रिप्ट करता सेंडर की प्राइवेट की से, तो उसने एज इट इज वही हैश साथ लगा दिया। लेकिन अब रिसीवर ने जब वो नए मैसेज का हैश क्रिएट किया तो वो कुछ और हैश होगा, वो अब ओरिजिनल सेंडर के हैश से भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैसेज में एक बाइट की भी चेंज आएगी तो हैश रिजल्ट में चेंज आएगी। ये हम ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, मैं अक्सर आपको कहता हूँ पेपर्स में कि एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अगर ये आंसर है आपके पास और आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो किस तरह की डायग्राम बनेगी। कॉपी पेंसिल पे बड़े आराम से आप सिंपल सी रफ सी एक डायग्राम बनाएं जो फ्लो को शो करती हो। वो डायग्राम वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और मिक्स भी हो सकती है, इट्स अप टू यू, फ्लो शो होना चाहिए। तो इधर इस वक्त मैं वर्ड को यूज़ करते हुए, समझ लें मैं कॉपी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड को मैं मजबूरन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिकॉर्ड द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग माई टेबल एंड नोटबुक। तो मैं वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इन्हीं स्टेप्स को हम परफॉर्म करते हैं। ये मेरे पास वर्ड मैंने ओपन करके रखा है। इसमें स्टेप नंबर 1, लेट्स सी, हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या है, सेंडर क्रिएट्स अ मैसेज। तो आप क्या करें, आप अपनी नोटबुक या अपने आंसर शीट के ऊपर एक बॉक्स बना लें और इस बॉक्स को आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ऐड टेक्स्ट, और टेक्स्ट को कहते हैं एम। ठीक है, सेंडर्स क्रिएट अ मैसेज, स्टेप 1 कंप्लीट। SHA-1 इज यूज्ड टू जनरेट अ 160 बिट हैश कोड ऑफ द मैसेज। तो इस मैसेज को अब आपने SHA-1 के अंदर इनपुट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एरो की लेते हैं और ये एक एरो डालते हैं और उसके बाद हम
दोबारा एक एल्गोरिदम के लिए सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मैं ऐड टेक्स्ट करता हूँ SHA-1। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट होगी मैसेज की SHA-1 में। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इसके साथ एरो के साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो अब SHA-1 हमें कोई आउटपुट देगा, तो आउटपुट भी शो कर लेते हैं। अगेन देयर इज एरो, इस तो छोटा सा एरो लगाते हैं और इंसर्ट शेप, दोबारा हम एक आउटपुट बॉक्स बना लेते हैं। तो हम इसको कहते हैं आउटपुट, उसने क्या दी, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है SHA-1 इज यूज्ड टू जनरेट 160 बिट हैश कोड ऑफ द मैसेज। तो क्या इस दूसरे में दिया 160 बिट्स हैश कोड। ठीक है, तो ये हमारे पास, आपने इसको बस फ़र्क किया, आपने इसको बॉल पेन से अपने आंसर शीट से बनाना है। तो ये SHA, ये मैसेज इनपुट हुआ SHA-1 में, SHA-1 ने आउटपुट दिया हमें 160 बिट का हैश कोड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, द हैश कोड इज इनक्रिप्टेड विद RSA यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की। इसका मतलब है इस हैश कोड को हमने अगेन इनपुट करना है एक एल्गोरिदम में, जिस एल्गोरिदम का नाम है RSA। तो ये इनपुट के लिए हमने बना दिया एरो और यहाँ पे हमने एक सर्कल बना दिया और इसके अंदर ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट RSA। ठीक है, और RSA में बेसिकली RSA इज अ पब्लिक की इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। RSA में दूसरी चीज़ क्या जानी है, दूसरी चीज़ हमारी पब्लिक या प्राइवेट की जानी होती है। तो इस केस के अंदर हमने ये एरो बनाया और इस केस में हमने इधर प्राइवेट की ऑफ सेंडर डाल दी। ठीक है, तो ये हमारे पास RSA में प्राइवेट की ऑफ सेंडर चली गई। और उसने हमें एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देना है और वो इनक्रिप्टेड हमारा हैश है। ये 160 बिट का हैश इनपुट हुआ, सेंडर की प्राइवेट की इनपुट हुई और हमारे पास यहाँ पे एक एरो को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, इसको ला के, तो इसने हमें आउटपुट क्या किया, अगेन ये सेम, इसको कहते हैं हम इनक्रिप्टेड हैश कोड। हैश कोड ये था हमारे पास ओरिजिनल 160 बिट का। 160 बिट का आपको पता है RSA में जिस साइज़ का ब्लॉक एंटर हो उसी साइज़ का ब्लॉक वो आउटपुट करता है, लेकिन वो ब्लॉक इनक्रिप्टेड होता है। अब इनक्रिप्शन शो करने के लिए हम इसको किसी और कलर से फिल कर देते हैं, इसको हम ग्रे फिल कर देते हैं कि ये ओरिजिनल था विदाउट इनक्रिप्शन, ये इनक्रिप्टेड। और स्टेप 3 ही कंटिन्यू करेगा, एंड रिजल्ट इज प्रिपेंडेड टू द मैसेज। तो अब क्या, ये हमारे पास ये मैसेज है, मैसेज को हमने Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, आप उधर नया ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैसेज इधर से हमारे पास एज इट इज़ उठ के आया, इसके अंदर कोई इंक्रिप्शन नहीं हुई हुई। ठीक है, ये मैसेज इधर से इधर आ गया, उसकी एक कॉपी, और यहाँ से इसकी Ctrl+C Ctrl+V करें और यहाँ से ये इनक्रिप्टेड हैश इसके साथ लग गया। तो ज़रा दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, मैसेज को यहाँ पे भी थोड़ा थिक कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो इतना हमारे पास पोर्शन है, ये ब्रैकेट मैंने लगाई, ये पोर्शन जो है हमारा, ये अब सेंड हो जाएगा। ठीक है, जितनी हमारी ये ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी इधर से लेके ये चीज़ इधर, अगर मैं टेक्स्ट एंटर करना चाहूँ, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो इधर हम कहते हैं जी सेंड। तो इतना पोर्शन हमारे पास सेंड हो गया, ये मैसेज प्लस इनक्रिप्टेड हैश कोड।
तो ये स्टेप नंबर 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये आ गया रिसीविंग एंड, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 पे इस टोटल की हम कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V, टोटल की बनी। अब ये इसको भी कर लेते हैं। चलिए, ये अब रिसीविंग एंड पे ये दोनों चीज़ें हमारे पास पहुंच गई। अब रिसीविंग एंड पे वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर द रिसीवर यूजेस RSA विद सेंडर्स पब्लिक की टू डिक्रिप्ट एंड रिकवर द हैश कोड। तो वो क्या कर रहा है, वो इतने हैश कोड को, मैं ब्रैकेट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इस ब्रैकेट को ला के इधर आपको शो करता हूँ कि सिर्फ इतने पोर्शन को वो इतने पोर्शन को, जो हैश कोड वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा थिक कर देते हैं ताकि हमें सही समझ आए। हैश कोड वाला पोर्शन है, उसको वो क्या हुआ यहाँ पे, वो इनक्रिप्ट हुआ है। तो इस पोर्शन को अब वो क्या कर रहा है, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के अंदर पुट कर रहा है। ठीक है, तो हम इधर इसको कहते हैं कि इस पोर्शन को उसने डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में डाला, और इधर से कॉपी कर लेते हैं इसको, क्योंकि डिक्रिप्शन एल्गोरिदम अगेन क्या होगा, RSA होगा। और रिसीविंग सेंडिंग एंड पे प्राइवेट की इनपुट हुई थी, रिसीविंग एंड पे हमारे पास अब पब्लिक की ऑफ सेंडर इनपुट होगी इसमें। ठीक है, यहाँ से तो पब्लिक की ऑफ सेंडर इनपुट हुई, और अब उसने इसको डिक्रिप्ट कर दिया। अब यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए RSA यूज हुआ था, इधर डिक्रिप्शन के लिए यूज होगा। तो डिक्रिप्ट होने के बाद उसके पास एक्चुअली ये चीज आउटपुट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इट्स सो सिंपल। तो ये आउटपुट आ गई। अब वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट वो कर रहा है, यहाँ पे उसने कहा द रिसीवर यूजेस RSA विद सेंडर्स पब्लिक की टू डिक्रिप्ट एंड रिकवर द हैश कोड। द रिसीवर जनरेट्स अ न्यू हैश कोड फ्रॉम द मैसेज। तो मैसेज पार्ट से, ठीक है, नॉट फ्रॉम द मैसेज प्लस कितने पार्ट से, इतने पार्ट से, मैसेज वाले पार्ट से, जिसके इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट लगा ली। इतने पोर्शन को वो दोबारा SHA1 में डालेगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, और इतने पोर्शन को जब वो SHA1 में डालेगा, ठीक है, तो SHA1 उसको क्या प्रोड्यूस करके देगा, 160 बिट्स का हैश कोड। ठीक है, तो 160 बिट्स का हैश कोड। ये स्टेप नंबर 5। The receiver generates a new hash code from the message and compare it with the decrypted hash code, और इन दोनों को आपस में वो कंपेयर करेगा। ठीक है, इन दोनों को वो आपस में कंपेयर करेगा। ठीक है, तो ये दोनों अगर कंपेयर हो गए, सेम हुए, तो इसका मतलब है मैसेज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आई और मैसेज ऑथेंटिक है। देखिए, अब दोबारा मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेंडर ने जब सेंड किया इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन
के अंदर जब सेंडर ने कोई इधर से ऐसा लगाते हैं, क्रॉस ले लेते हैं, इस पोर्शन के अंदर हैकर ने आके इसको रोका और मैसेज को उसने चेंज किया। इस मैसेज के अंदर उसने कोई चेंजेस की और हैश कोड एज इट इज़ उसने चेंज्ड मैसेज के साथ लगा दिया। अब हैश कोड की एक प्रॉपर्टी है, SHA-1 हो या कोई भी हैश एल्गोरिथम हो, कि किसी भी एक बिट की भी अगर चेंज हो दो मैसेजेस में तो उनका हैश कोड सेम नहीं हो सकता। तो हैकर के पास उसकी सेंडर की प्राइवेट की तो थी नहीं, इसलिए वो नया हैश क्रिएट करके उसको प्राइवेट की से तो इनक्रिप्ट कर नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, मैसेज में चेंज की और वो जो 7 हैश कोड आया था वही हैश कोड दोबारा लगा के उस मैसेज को सेंड कर दिया। अब रिसीविंग एंड पे जो 7 हैश कोड आया था वो इस मैसेज का था, ठीक है, जो कि एक्चुअल मैसेज था। लेकिन जब वो रिसीवर नया हैश कोड अपना ये वाला जनरेट करेगा ये वाले पोर्शन के अंदर, तो वो इस मैसेज का होगा जो हैकर ने चेंज कर दिया है। तो जो 7 हैश कोड आया है वो डिक्रिप्ट होके नए वाले हैश कोड से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर नहीं होगा। तो रिसीवर को पता लग जाएगा कि मैसेज में रास्ते में कोई चेंजेस हुई हैं और मैसेज इज़ नॉट ऑथेंटिक। तो ये था बच्चों ऑथेंटिकेशन का। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी पे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी अच्छी डायग्राम्स बनी हुई है स्लाइड्स में। मैंने सिर्फ आपको इसलिए ही बना के दिखाई कि आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो बनानी है, आपने फ्लो बताना है। आपने जस्ट यू हैव टू शो मी योर अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन एक्सप्लेन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। तो मुझे ये पता लगे कि आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया हुआ, आपको चीज़ों का पता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेन वही 5 स्टेप्स हैं। सेंडर जनरेट्स अ मैसेज and a random 128-bit number to be used as a session key for this message only। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये मैसेज जो है ये कंप्रेस होने वाला है इस सेशन की से। ठीक है, अब सेशन की तो अभी रैंडमली जनरेट हुई है तो रिसीवर के पास तो नहीं होगी, इसका मतलब है हमें वो सेशन की अब साथ भेजनी है। द मैसेज इज इनक्रिप्टेड यूजिंग कास्ट 128 और IDA और 3 और एनी ब्लॉक एल्गोरिथम। ठीक है, तो कास्ट 128 भी एक अच्छा सेम की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। 3 तो हमने डिस्कस भी किया हुआ है, तो आप 3 ले लें। ठीक है, विद दी सेशन की। अब सेशन की से अगर वो इनक्रिप्ट हुआ है तो उसी सेशन की से डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, 3 हो गया, कास्ट 128 हो गया, ये सारे सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है जिसमें सेम की यूज होती है, ये पब्लिक और प्राइवेट की एल्गोरिथम नहीं है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, द सेशन की इज इनक्रिप्टेड विद RSA यूजिंग द रेसिपिएंट्स पब्लिक की एंड इज प्रीपेंडेड टू द मैसेज। और उसके बाद अब क्योंकि की हमने साथ भेजनी है सेशन की, क्योंकि हमने रैंडमली जनरेट किया और उसको यूज़ कर दिया हमने मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, अब उस की के बगैर तो मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो साथ भेजेंगे तो हैकर भी वो की यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। और हम करना क्या जा रहे हैं इस केस में, कॉन्फिडेंशियलिटी के है, किसी को उसके अलावा मैसेज समझना है जिसके लिए मैसेज है। तो उसका हमने हल क्या निकाला है कि हमने जो की है, मैसेज नहीं, जो की है उसको हमने रेसिपिएंट की यानी कि रिसीवर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर दिया है और साथ लगा दिया। अब वो रिसीवर की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगी। ठीक है, अब उसको रास्ते में कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता सेशन की को, क्योंकि सेशन की RSA से इनक्रिप्टेड है जो पब्लिक की प्राइवेट की एल्गोरिथम है और जिसके अंदर रिसीवर की पब्लिक की से को इनक्रिप्ट किया गया है। तो अब रिसीवर की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, प्राइवेट की जिसकी होती है उसके अलावा किसी के पास नहीं होती। तो इसका मतलब है रिसीवर जो है वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए साथ आई हुई सेशन की को डिक्रिप्ट कर लेगा। स्टेप नंबर 4 है, द रिसीवर यूजेज RSA विद इट्स प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट एंड रिकवर द सेशन की। सेशन की उसको रिकवर हो गई तो सेशन की को स्टेप नंबर 5 में द सेशन की इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द मैसेज। तो लेट्स ड्रॉ इट्स ड्राइंग, the drawing of this process. Again, sender generates a message and a random 128-bit number to be used as session key for this message only. तो वैसे ही स्टेप्स हैं, हम करते हैं जी। यहाँ पे जाके एक मैसेज किया, इसको कहते हैं हम एड M
और साथ ही एक और छोटा बॉक्स, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि वन मैसेज बड़ा होगा। ये 128 बिट्स, ये याद रखें कि ये रैंडम होंगे, रैंडम। और इसको हम कहेंगे सेशन। सेशन पूरा लिखने की बजाय मैं इधर लिख देता हूँ की एस, एस स्टैंड फॉर सेशन। तो अगर ये मैसेज है हमारे पास, तो ये हमारे पास, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ेगा मुझे, तो कीप इट इन द बॉक्स। तो ये हम चलिए ये मैसेज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि कंपैरिजन। तो ये दो चीज़ें हमने स्टेप नंबर 5 पे 128 भी रैंडम की और उसको हमने कहा के एस सेशन की, ठीक है। तो के एस हमने जनरेट कर ली और मैसेज जनरेट कर लिया। अब मैसेज को हमने इनपुट करना है। फॉर एग्जांपल 3 डैश में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, यू हैव ऑलरेडी सीन ऑन द स्लाइड। सो फिलहाल हमने क्योंकि 3 डैश काफ़ी डिस्कस किया हुआ है तो हम इधर अपना लिख देते हैं 3 डैश। तो इसको हमने इनपुट कर दिया, थ्री डैश। हो गया जी। और 3 डैश को एक और चीज़ भी चाहिए सेम की, और इस केस में हम यूज़ करेंगे ये वाली सेशन की, ठीक है। और 3 डैश हमें इस मैसेज का एक इनक्रिप्टेड वर्जन दे देगा, ठीक है। ये अब वो नई डाइजेस्ट नहीं जनरेट हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी हो रही है, तो पूरा मैसेज इनक्रिप्ट होगा और उसी साइज़ का होगा जिस साइज़ का ओरिजिनल मैसेज था। हमने डेस्क एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज देखी है। इसको हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि ये डिफरेंट इनक्रिप्टेड हो गया है। तो इसको हम ग्रे कर देते हैं। तो नाउ इट इज़ एन इनक्रिप्टेड मैसेज, ग्रे हो गया। अब अगर ये मैसेज हम सेंडर को सेंड कर देते हैं तो वो इसको कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। इसको मैं लिख देता हूँ इनक्रिप्टेड मैसेज। अब इसको कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा क्योंकि जिस की के साथ हमने उसको इनक्रिप्ट किया है वो की रिसीवर के पास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हैकर से बचाने का मतलब ये तो नहीं है कि आपका रिसीवर भी मैसेज ना पढ़ सके। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस मैसेज के साथ जो की हमने जनरेट की थी जिससे ये मैसेज एक्चुअली इनक्रिप्ट हुआ है वो की हमने इस मैसेज के साथ सेंड करनी है। और अगर मैं की इधर ये की इसके साथ लगा के सेंड कर दूंगा तो वो फिर हैकर को भी मिल जाएगी। तो अब इस की को किस तरह सिक्योर करना है, इस की को हमने इनपुट करना है एक और एल्गोरिथम में, और वो एल्गोरिथम पब्लिक की प्राइवेट की वाला एल्गोरिथम कहलाता है और उसको हम कहते हैं RSA, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम, इस की को हमने यूज़ करने के बाद उसको एक कॉपी बनाई और उस कॉपी को हमने इनक्रिप्ट कर दिया यूजिंग RSA। तो RSA में की भी डालनी है, तो की डालने के लिए हमें कौन सी की यूज़ करनी है, पब्लिक की ऑफ रिसीवर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आपको याद होगी कि अगर पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगा, और अगर प्राइवेट से इनक्रिप्ट करेंगे तो पब्लिक से डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। इसको मैं और आगे थोड़ा ले जाता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पे वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी एक एरो और चाहिए, इस एरो को हमने यूज़ कर लिया ये शो करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर RSA में एक तो ये की डली एज अ मैसेज जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है, और एक पब्लिक की डली इनक्रिप्ट करने के लिए,
और आउटपुट क्या आई हमारे पास, इस की का इनक्रिप्टेड वर्जन, इस 128 बिट की का इनक्रिप्टेड वर्जन हमारे पास एज द आउटपुट आ गया। ठीक हो गया। अब इसको हम कलर चेंज कर देते हैं कि ये इनक्रिप्टेड है, एक ग्रे किया है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखने के लिए हम इसको थोड़ा लाइट ग्रे कर देते हैं। और उसके बाद ये देखिए स्टेप क्या है, जब मैसेज इज इनक्रिप्टेड यूजिंग, ये हो गया। स्टेप नंबर 3, द सेशन की इज इनक्रिप्टेड विद RSA यूजिंग रेसिपिएंट्स पब्लिक की एंड इट इज प्रीपेंडेड टू द मैसेज। प्रीपेंडेड का मतलब है इसको मैसेज के साथ जोड़ देना। तो इधर इसको हम थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं और कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, इसको हम मैसेज के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो इकट्ठा है मैसेज और की, ये हमने सेंडर को सेंड कर दी। तो ये ब्रैकेट डालते जी, इधर हम डालते हैं ब्रैकेट ताकि हमें पता लगे कितना पोर्शन जो है वो हमारा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने सेंड कर देना है। तो यहाँ से हम शो करते हैं जी ये, और इधर सेंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंड। तो इस पोर्शन को हम रिसीविंग एंड पे रिसीव करते हैं। ठीक है, एज इट इज। उसके बाद लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स। द सेशन की इज एनक्रिप्टेड विद RSA यूजिंग रेसिपिएंट्स पब्लिक की एंड प्रीपेंडेड टू द मैसेज। ये हो गया, रिसीव सेंड हो गया मैसेज, दोनों चीज़ें मैसेज प्लस एनक्रिप्टेड सेशन की। द रिसीवर यूजेज RSA विद इट्स प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट एंड रिकवर द सेशन की। तो इसमें से रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर पहले इतने पोर्शन को कंट्रोल C कंट्रोल V करे, इतने पोर्शन को डिक्रिप्ट करेगा जो कि उसकी सेशन की साथ आई हुई है। ठीक है, और वो किससे डिक्रिप्ट करेगा, वो RSA एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट करेगा। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे RSA की शेप। ठीक है, इतने पोर्शन को वो ये है RSA एल्गोरिथम। ठीक है, और RSA एल्गोरिथम के अंदर वो दूसरी चीज़ क्या इंसर्ट करेगा, वो इंसर्ट करेगा अपनी प्राइवेट की। ठीक है, क्योंकि उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, पब्लिक की सबको मिल सकती है। तो जो सेंडर था उसने उसकी पब्लिक की निकाली इंटरनेट से, उससे इनक्रिप्ट किया। अब इस सेशन की को वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकता है। तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करने के लिए उसको यहाँ पे हम डाल देंगे जी प्राइवेट की ऑफ रिसीवर। तो इस तरह ही आपने करते करते इंशाल्लाह सॉल्व कर लेना है, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट की ऑफ रिसीवर इसमें इनपुट हुई और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट हमारे पास इसके अंदर से आएगी जो हमारे पास 128 बिट की सेशन की थी। 128 बिट की सेशन की, KS भी लिखते हैं और सेशन की भी लिख देते हैं। ठीक है, ये आउटपुट हो गई। अब क्या होगा, अब हम इस पोर्शन को जो कि मैसेज का पोर्शन है इसको हम एंटर करेंगे, मैसेज वाले पोर्शन को हम
कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो इसको एरो को हम ज़रा घुमा लेते हैं क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस कम हो गई है। तो जो मैसेज वाला पोर्शन है इसको अगेन हम एक एल्गोरिदम में एंटर करेंगे। वो एल्गोरिदम कौन सा होगा, जिस एल्गोरिदम से ये मैसेज इनक्रिप्ट हुआ था, और वो एल्गोरिदम क्या था, 3DES। तो 3DES के अंदर हम यहाँ पे इसको 3DES लिख देते हैं। 3DES के अंदर इसको हम एंटर करेंगे और 3DES में दूसरी चीज़ क्या एंटर होगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। 3DES में दूसरी चीज़ वो सेशन की एंटर होगी और हमारे पास रिकवर क्या करेंगे, हम रिकवर हम करेंगे एक मैसेज। ठीक है, इधर हम इसको नीचे ले जाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास कंट्रोल ये मैसेज है जो कि ओरिजिनल हमारे पास यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो यह फ्लो देखें, मैसेज इनपुट हुआ 3DES में, एक रैंडम की जनरेट हुई मैसेज के साथ ही हमारे कंप्यूटर ने रैंडमली जनरेट की है, वो पहले से प्री डिटरमिनेड नहीं है। उस की को यूज़ किया 3DES के अंदर मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, और मैसेज ये ब्लैक बॉक्स के अंदर हमने कहा इनक्रिप्टेड मैसेज हो गया। अब क्योंकि ये पहले से रिसीवर के पास ये की नहीं है तो समहाउ हमने ये रिसीवर को की भेजनी है ताकि रिसीवर इस की को यूज़ करके इस मैसेज को दोबारा से इस मैसेज में कन्वर्ट कर सके। तो हमने क्या किया, इस की को एज अ मैसेज इनपुट किया RSA में, और RSA जो है वो पब्लिक प्राइवेट की एल्गोरिदम है, और पब्लिक की हमने रिसीवर के साथ इनपुट की और हमारे पास वो इनक्रिप्टेड फॉर्म आ गई 128 बिट की। अब वो कोई और उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता स्वाय उसके जिसके पास प्राइवेट की ऑफ रिसीवर हो, और प्राइवेट की जिसकी होती है सिर्फ उसके पास ही होती है। और हमने उसको वो इनक्रिप्टेड मैसेज के साथ ये वाली सेशन की को साथ जोड़ा इनक्रिप्टेड और सेंड कर दिया। रिसीविंग एंड पे उसने सेशन की को लैदा किया, उसको RSA में डाला डिक्रिप्शन करने के लिए अपनी प्राइवेट की के साथ। तो उसको वहाँ पे क्या रिसीव हो गया, उसको वहाँ पे एक की रिसीव हो गई सेशन की, जो कि ओरिजिनली ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और यहाँ से उसने उस सेशन की को यूज़ किया मैसेज को 3DES में, क्योंकि 3DES से ही वो इनक्रिप्ट हुआ था, 3DES में डाला और सेशन की को डाली और हमारे पास मैसेज रिकवर हो गया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। तो ये हमने कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव की। तो बच्चों ये तो मैंने आपको डायग्राम्स खुद से बना के दिखाई ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि पेपर में जो है वो एग्जैक्ट रट्टा लगा के ही आनी है डायग्राम। जस्ट फ्लो समझ आना चाहिए। ये मैंने रैंडमली बनाई विदाउट एनी प्लानिंग, अभी आपके सामने ही वो बुलेट्स के हिसाब से। अगर आपको उन बुलेट्स की अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन मेक योर ओन। तो यहाँ पे ये बुक की है, ये ज़रा ज़्यादा अच्छी है, साफ़ सुथरी बनी हुई है। Authentication, first one is of authentication, message is created. Step number 1, create a message. Step number 2, put the message into hash function, that is SHA1, और जो hash function की output होगी उसको encrypt कर दें using KR stands for private key, KR of A जो है वो sender है, तो private key ये हम जो first वाला अपना देख रहे हैं। The sender create a message, SHA1 is used to generate 160 bits hash code of the message. The hash code is encrypted with RSA using, तो यहाँ पे ये RSA यूज़ होगा प्राइवेट की के साथ। देन नेक्स्ट स्टेप मैसेज, यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज आ रहा है ये एरो के साथ, ये प्रीपेंड का साइन है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने का साइन है। तो ये जो हैश लिया, हैश को इनक्रिप्ट किया प्राइवेट, उसका जो रिजल्ट आया उसको ओरिजिनल मैसेज के साथ जोड़ दिया, और इस केस में यहाँ पे जिप किया जा रहा है। अभी हमने कंप्रेशन के ऊपर बात नहीं की, वो अभी हमने करनी है। तो बहरहाल जब मैसेज ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उसको जिप किया जाता है, उसको पहले जिप नहीं किया जाता। ये रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये मैसेज सेंड हो गया, रिसीवर ने मैसेज को, अब ये चीज़ याद रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक गिफ्ट है उसको एक बॉक्स में डाला, फिर उस बॉक्स को एक और बॉक्स में डाला, उस बॉक्स को एक और बॉक्स में डाला। आपने मूवीज़ में देखा होगा या शायद आप में से किसी ने शरारत खुद भी की हो कि एक छोटे से गिफ्ट को बहुत सारे डब्बों में डाल के बहुत बड़ा डब्बा ऐसा गिफ्ट किसी को दे दिया, वो गिफ्ट खोल रहा है। तो सबसे पहले वो कौन सा बॉक्स खोलेगा, जो सबसे एंड पे लगा।
तो रिसीविंग एंड पे वैसे ही होगा, जो काम सबसे एंड पे हुआ था सबसे पहले रिमूव होगा। तो सबसे एंड पे जिप का बॉक्स समझे लगा था, तो सबसे पहले जिप रिमूव हो गया, अनकम्प्रेस हो गया मैसेज। अनकम्प्रेस होके मैसेज में दो चीज़ें निकली, एक वो मैसेज का अपना पोर्शन और एक उसके साथ ये जो हैश डाइजेस्ट का वो रिजल्ट आ रहा था जो इनक्रिप्टेड था। तो इसीलिए इनक्रिप्टेड होने की वजह से एक ग्रे शो किया गया। ये ग्रे वाले पोर्शन को डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में डाला जो कि RSA था, और यहाँ पे की यूज़ हुई थी प्राइवेट, यहाँ पे यूज़ हुई पब्लिक, और ऑपोजिट होनी है। तो सेंडर की प्राइवेट यूज़ हुई थी, सेंडर की पब्लिक, KU(A), ठीक है। और यहाँ पे उसका जो भी रिजल्ट आ गया वो उसको होल्ड करते हैं। यहाँ पे मैसेज को दोबारा हैश में डालते हैं और हैश का जो रिजल्ट आता है वो कंपेयर करते हैं। अगर ये सेम है तो ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। तो ये वही डायग्राम मैंने और तरीके से बनाई, बुक के अंदर और तरीके से है, आपका अपना वे हो सकता है, बस समझ आनी चाहिए चीज़ें। दूसरा था कॉन्फिडेंशियलिटी का। मैसेज को किया जाएगा जिप। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन में सारी ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने के बाद जिप किया गया था। कॉन्फिडेंशियलिटी में सबसे पहला स्टेप जिप होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। जिप करने के बाद उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा सेशन की से, KS, S स्टैंड्स फॉर सेशन, K स्टैंड्स फॉर की, जो भी हमने पढ़ा था। सेशन की में इधर 3' यूज़ हो सकता है, IDA यूज़ हो सकता है, कास्ट 128 यूज़ हो सकता है। तो इधर उन्होंने सिंपल इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लिख दी है, KS को डाला इनक्रिप्ट करने के लिए जिप्ड मैसेज को, और बाद में उस KS को डाला एज अ मैसेज इंक्रिप्शन के लिए RSA में पब्लिक की ऑफ B, ये था B जिसको हमने डाटा भेजना है, उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया किसको, KS को, सेशन की को। तो इसका जो रिजल्ट आया उसको ये मैसेज के इनक्रिप्टेड रिजल्ट के साथ अपेंड कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और सेंड हो गया। अब ये रिसीविंग एंड पे उसको दो ग्रे बॉक्स मिले साथ जुड़े हुए। एक ग्रे बॉक्स वो की है, वो भी इनक्रिप्टेड है, दूसरा ग्रे बॉक्स वो मैसेज है। अब मैसेज रिकवर करने से पहले उसको की रिकवर करनी पड़ेगी कि जिस की से मैसेज इनक्रिप्ट हुआ था। तो उसने क्या किया, वो जो की वाला पोर्शन था ऊपर, उसको डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में डाला अपनी प्राइवेट की के साथ, क्योंकि वो उसकी पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हुआ था, तो अब वो उसकी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट होगा। तो उसकी प्राइवेट की के साथ वो डिक्रिप्ट हुआ। अब वो डिक्रिप्ट होके वो KS बन गया, यानी कि सेशन की ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गई। अब उस सेशन की जो वो ओरिजिनल फॉर्मेट में आई, जो इस डिक्रिप्शन एल्गोरिथम की आउटपुट थी, उसको ये मैसेज वाले बॉक्स का एरो आ रहा है, और मैसेज को डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में डाला जो कास्ट 128 था, यहाँ 3' था, तो उसके अंदर डाला और ये सेशन की डाली, तो ये मैसेज जो है डिक्रिप्ट हो गया। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला बॉक्स क्या था, जिप। तो जो सबसे पहला डब्बा होता है वो सबसे एंड पे उतरता है, तो यहाँ पे उस मैसेज को अनजिप किया। तो कॉन्फिडेंशियलिटी की सूरत में सबसे एंड पे उतरेगा जिप क्योंकि वो सबसे पहले हुआ था, और ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले उतरेगा जिप क्योंकि वो सबसे एंड पे हुआ था। रीज़न अभी हम डिस्कस करते हैं, और मैसेज रिकवर हो गया। अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है, जो कि बेसिकली आपकी असाइनमेंट भी होगी, कि आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। ये नीचे थर्ड डायग्राम है जिसमें ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों है, सी डायग्राम, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिकेशन। थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने मेरी तरह अपनी मर्जी की ड्राइंग बनानी है और खुद से स्टेप लिखने। मैसेज का हैश लिया जा रहा है, इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन पहले हो रही है। अगर दोनों करने हैं तो ऑथेंटिकेशन पहले हो रही है। हैश लिया गया, हैश लेने के बाद मैसेज को उस हैश को इनक्रिप्ट किया गया, और उस हैश इनक्रिप्टेड हैश को और मैसेज को आपस में जोड़ दिया गया। इधर सेंडिंग एंड का काम ऑथेंटिकेशन का पूरा हो गया। तो बेसिकली आपने क्या करना, बड़ा आसान है। आपने ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डायग्राम उठानी है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन की, और उसके बाद आपने बजाय कि सेंड करने के, आपने यहाँ से ये डायग्राम शुरू कर देनी है कॉन्फिडेंशियलिटी वाली। तो ऑथेंटिकेशन की डायग्राम ये यहाँ तक अपेंड के साइन तक कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से आप उठा लें अब इससे मैसेज से आगे की डायग्राम, क्योंकि मैसेज तो ऑलरेडी ऑथेंटिकेशन में आ रहा है। मैसेज से आगे क्या हो रहा था, जिप। तो ऑथेंटिकेशन के फ़ौरन बाद जिप हुआ। जिप होने के बाद ये वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी का। तो वो सारा पोर्शन जब कंप्लीट हो गया, अब मैसेज सेंड होगा। तो अब जो काम पहले होता है वो एंड पे उतरता है,
तो ऑथेंटिकेशन वाला काम पहले हुआ था, इसलिए ऑथेंटिकेशन वाला काम एंड पे उतरेगा। जो काम बाद में हुआ था वो था कंप्रेशन वाला। तो सॉरी कंप्रेशन कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी चेक होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी रिमूव होगी। तो हमने ये सेशन की वाला पोर्शन रिमूव किया, तो आपने क्या करना है, ये वाला पोर्शन जो है इधर से लेके इधर तक का यहाँ पे उठा के चुप करके कॉपी पेस्ट कर देना। और जब यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ से शुरू कर देना है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑथेंटिकेशन की सेंडिंग और ऑथेंटिकेशन का रिसीविंग एंड्स पे ले जाएं और इन बिटवीन कॉन्फिडेंशियलिटी की सेंडिंग और कॉन्फिडेंशियलिटी की रिसीविंग लगा दें। तो एक इसका सिनेरियो ये है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कंप्रेशन। PGP compresses the message after applying the signature but before encryption। तो PGP कहाँ पे कर रहा है, PGP compress after applying the signature, यानी कि ऑथेंटिकेशन वाला काम पूरा करने के बाद PGP कंप्रेस करता है चीज़ को, लेकिन इंक्रिप्शन से पहले यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी से पहले। उसकी रीज़न है, देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी की तो बड़ी सिंपल रीज़न है, हमने क्रिप्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि इफ़ यू वांट टू एनालाइज एन एनक्रिप्टेड मैसेज टू डिस्कवर द ओरिजिनल मैसेज और टू ब्रेक द की, तो उसको हमें ऑटोमेट करना पड़ता था चेक करने के लिए। हमने जितनी कीज़ ट्राई करनी है वो मिलियंस में है। अब मिलियंस में की का रिजल्ट आप आंखों से टेस्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये डिक्रिप्शन हो गया, रुक गई। तो हमें कंप्यूटर से ऑटोमेट करना पड़ता था। कंप्यूटर से ऑटोमेट करने के लिए हमें कोई ना कोई ओरिजिनल डाटा का सैंपल चाहिए होता था। तो अगर ओरिजिनल डाटा इंग्लिश की ईमेल या इंग्लिश की कन्वर्सेशन थी तो बड़ा आसान है, हम एक डिक्शनरी के कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे और हम कहेंगे कंप्रेशन डिक्रिप्ट करके हर की के बाद इस टेक्स्ट के साथ मैच करो, कि अगर इस टेक्स्ट के साथ कोई चीज़ मैच हो रही है तो हमने उसको तोड़ लिया इंक्रिप्शन को। लेकिन व्हाट इफ कि थी तो वो इंग्लिश, लेकिन किसी ने उसको इंक्रिप्शन करने से पहले जिप कर दिया था। तो जिप फॉर्मेट तो एग्जैक्ट मसलन ए के लिए अगर 63 है या 65 है तो आस्की कोड, तो जिप होने के बाद तो वो ए जो है वो 65 या 63 नहीं रह जाएगा, उसका तो आस्की चेंज हो जाएंगे। तो वो जो क्रिप्ट एनालिसिस का काम है ना वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो और इम्पॉसिबल हो जाएगा, इंक्रिप्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इंक्रिप्शन से पहले तो इसलिए करते हैं कि हम पहले ही कोई ऐसा उसको कोडेड एक किस्म का कर दें कि वो इंक्रिप्शन के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऑथेंटिकेशन से पहले क्यों नहीं करते? अच्छा इंक्रिप्शन से पहले करते हैं तो फिर ऑथेंटिकेशन से भी पहले ले जाए। अच्छा ऑथेंटिकेशन से पहले अगर आप जिप करेंगे और फिर जिप्ड चीज़ को ऑथेंटिकेट करेंगे तो जब आपकी ईमेल्स आपके इनबॉक्स में स्टोर होती हैं तो वो जिप फॉर्मेट में तो स्टोर नहीं होती। तो आपने क्या किया, आपने पहले मैसेज को जिप किया फिर ऑथेंटिकेट किया जिप्ड मैसेज को। तो जिप्ड मैसेज तो ऑथेंटिकेट हो रहा होगा स्टोर्ड फॉर्मेट में, लेकिन हमने जिप स्टोर ही नहीं रखना, हमने तो अनजिप स्टोर रखना है। तो अनजिप के साथ सिग्नेचर उतर जाएंगे। तो अगर आप 1 साल बाद वो ईमेल चेक करें, 6 महीने बाद चेक करें, 1 महीने बाद चेक करें, तो उसके साथ उसका सिग्नेचर पार्ट नहीं पड़ा होगा या मैच नहीं करेगा। अगर पड़ा भी होगा तो वो मैच एक्चुअली जिप वाले पार्ट से करता। तो जिप वाला पार्ट तो हमने स्टोर ही नहीं किया, हम तो अनजिप्ड मैसेज ईमेल्स के अंदर स्टोर करते हैं। जिप तो इसलिए किया जाता है ताकि ट्रैवलिंग डाटा कंप्रेस हो जाए और छोटा हो जाए और जल्दी ट्रैवल कर जाए, ठीक है। तो इसलिए हम पहले अपने मैसेज को ऑथेंटिक कर लेते हैं फिर जिप करते हैं, ताकि जब उसको अनजिप करें तो ऑथेंटिकेशन वाला मैसेज समेत जिप उसके अंदर से निकले और वो ऑथेंटिकेशन अनजिप्ड मैसेज की हो, ताकि वो अनजिप्ड मैसेज और अनजिप्ड मैसेज की ऑथेंटिकेशन जब भी मैच की जाए वो मैच हो जाए। अगर ऑथेंटिकेशन जिप्ड मैसेज की थी तो अनजिप्ड के साथ तो मैच नहीं होगी, तो इसलिए फ्यूचर में हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये मैसेज ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो ये रीज़न थी स्पेसिफिकली कंप्रेशन को ऑथेंटिकेशन के बाद में करने की और कॉन्फिडेंशियलिटी से पहले करने की। अच्छा जी, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली ऑफन रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम मैसेज लेंथ ऑफ 50,000 ऑक्टेट्स। एक ऑक्टेट से 1 बाइट को कहते हैं, एक ऑक्टेट 1 बाइट होता है, तो 50,000 बाइट्स के ऊपर मैसेज की रिस्ट्रिक्शन होती है नॉर्मली। तो पीजीपी क्या करता है, लॉन्गर मैसेजेस मस्ट बी ब्रोकन इनटू सेगमेंटेशन। पीजीपी ऑटोमेटिकली सब डिवाइड्स अ मैसेज दैट इज टू लार्ज
द रिसीवर स्ट्रिप ऑफ ऑल द ईमेल हेडर्स एंड रीअसेंबल द ब्लॉक मैसेज। तो ये पीजीपी ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा होता है। पीजीपी जो है वो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ करता है, यानी कि हैशिंग के लिए, उसमें वो डीएसएस भी यूज़ करता है, एसएचए भी यूज़ करता है। डीएसएस वो यूज़ करता है एसएचए के रिज़ल्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। और आरएसए के साथ भी एसएसएच यूज़ हो जा सकता है। तो एसएचए यूज़ हुआ हैश लेने के लिए और आरएसए यूज़ हुआ उसके रिज़ल्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो रिज़ल्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए आप एसएचए के साथ या डीएसएस यूज़ करते हैं या आरएसए यूज़ करते हैं सिग्नेचर्स पार्ट के लिए। और इनक्रिप्शन के लिए यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कास्ट यूज़ कर सकते हैं, आईडीए यूज़ कर सकते हैं, 3 की ट्रिपल डैश जिसको हम कहते हैं, ये सारे यूज़ होते हैं। कंप्रेशन के लिए जिप यूज़ होता है। ईमेल कंपैटिबिलिटी के लिए एक हमारे पास प्रोटोकॉल है रेडिक्स 64 कन्वर्जन, वो यूज़ होता है। और सेगमेंटेशन इसमें बिल्ट इन है। तो अगर हम फ्लो डायग्राम देखें तो बेसिकली किस तरह काम करता है, काम इस तरह करता है, ये एक्स हमारा मैसेज है जो जाना है, एक्स डिसीजन बॉक्स में गया, सिग्नेचर रिक्वायर्ड, सिग्नेचर का मतलब है ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यस होगा तो इस तरफ जाएंगे, नो होगा तो अगले स्टेप पे चल जाएंगे। अगर यस था तो सिग्नेचर्स जनरेट होंगे और वो सिग्नेचर्स अपेंड हो जाएंगे एक्स के साथ। तो अब एक्स प्लस सिग्नेचर्स हो गए और हम इस स्टेप पे आ गए। आगे यहाँ पे कंप्रेशन होगी, ऑथेंटिकेशन क्योंकि कंप्लीट हो गई तो कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन के बाद वो कॉन्फिडेंशियलिटी इफ़ रिक्वायर्ड यस होगा तो इस तरफ, नॉट रिक्वायर्ड तो आगे चल जाएगा। अगर रिक्वायर्ड है तो इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग एक्स को इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग के एस को इनक्रिप्ट करेगा पब्लिक की ऑफ बी के साथ और अपेंड कर देगा इनक्रिप्टेड एक्स को जो कि के एस से इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, और उसके बाद वो इधर रेडिक्स 64 में कन्वर्ट करेगा और सेंड हो जाएगा। रिसीवर को अब क्या हुआ, एक मैसेज मिला कन्वर्टेड फ्रॉम रेडिक्स 64 से, उसने दोबारा उसको कन्वर्ट किया। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर हुई भी है उसको रिमूव करेगा। डिक्रिप्ट किस तरह रिमूव करेगा, पहले वो रिकवर करेगा के एस को, किस तरह डिक्रिप्ट यूजिंग अपनी प्राइवेट की, के आर स्टैंड्स फॉर प्राइवेट की ऑफ बी, इसके साथ रिमूव करेगा और फिर वो के एक्स को डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग के एस ऑन एक्स। एक्स हमारा वो मैसेज था, डिक्रिप्ट हो गया। उसके बाद उसको डिकम्प्रेस करेगा यानी कि अनजिप करेगा। अनजिप के बाद अगर उस पर सिग्नेचर्स अप्लाई हुए हुए थे तो वो उन सिग्नेचर्स को स्ट्रिप करेगा, पहले अलहदा करेगा वो जो सिग्नेचर वाला पार्ट है यानी कि हैश डाइजेस्ट है, और फिर उस हैश डाइजेस्ट को वेरीफाई करेगा। और सारा ये हमारा ये फ्लो डायग्राम है। पीजीपी मैसेज फॉर्मेट, मैसेज बेसिकली होता किस क्या क्या है उसमें और क्या क्या चीज़ किस तरह, कौन सा पार्ट इनक्रिप्ट हुआ होता है, कौन सा जिप हुआ होता है और कौन सा ऑथेंटिकेट हुआ होता है। तो ये नीचे जो सबसे बड़ा बॉक्स है ये हमारा ओरिजिनल डाटा है यानी कि मैसेज है। उसके ऊपर उसके हेडर में 2 चीज़ें लगती हैं, टाइम स्टैम्प और उसका फाइल नेम, ठीक है। तो इतने पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन को हम कहते हैं मैसेज है, ठीक है। उस मैसेज के बाद उसके ऊपर डाइजेस्ट लगती है, ऑथेंटिकेशन डाइजेस्ट, जिसको हम कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट, जो कि हैश डाइजेस्ट है, जो कि हैश से कैलकुलेट हुई है। और जो हैश डाइजेस्ट है सिर्फ उतना पोर्शन, यहाँ से ये एरो शुरू हुआ, यहाँ पे ये एरो ख़त्म हुआ, ये इनक्रिप्टेड है यूजिंग के आर ऑफ ए से, प्राइवेट की ऑफ ए से। तो जब इतना पोर्शन इनक्रिप्टेड हो गया, ये अभी मैसेज वैसे ही है हैश डाइजेस्ट का, इतना पोर्शन इनक्रिप्ट हो गया। लीडिंग टू ऑक्टेट्स ऑफ मैसेज डाइजेस्ट, ये एम्प्टी हैं, लीडिंग टू ऑक्टेट्स ये फ्यूचर वर्क के लिए होता है। फिर यहाँ पे की आईडी लिखी जाती है सेंडर की, कि देखें यहाँ पे सेंडर के आर स्टैंड्स फॉर प्राइवेट की, के स्टैंड्स फॉर की और ए स्टैंड्स फॉर सेंडर। तो सेंडर की किसी प्राइवेट की से ये वाली डाइजेस्ट इनक्रिप्ट हुई भी है। अब रिसीवर को पता लगना चाहिए कि उस सेंडर की कौन सी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुई है ताकि वो उसकी अगेंस्ट वाली पब्लिक की रिकवर कर सके। तो वहाँ पे की आईडी ऑफ सेंडर्स पब्लिक की डली हुई है ताकि सेंडर वो पब्लिक की रिकवर कर सके। और फिर टाइम स्टैम्प, तो इतना पोर्शन जो यहाँ पे से यहाँ तक है, इसको इस पोर्शन को हम सिग्नेचर कहते हैं, जिसमें से डाइजेस्ट इतना है, डाइजेस्ट के अलावा 2 ऑक्टेट्स खाली हैं और की आईडी है और टाइम स्टैम्प है। तो ये इतना पोर्शन मिलके
सिग्नेचर बनता है और इतने ही पोर्शन को जिप कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पोर्शन जिप हो गया। ये अब जिप कब हुआ? इंक्रिप्शन से पहले। आगे इतने ही पोर्शन को इंक्रिप्ट किया जा रहा है यूजिंग E स्टैंड्स फॉर इंक्रिप्शन, K स्टैंड्स फॉर की, S स्टैंड्स फॉर सेशन। इतने ही पोर्शन को पहले जिप किया गया, फिर उस जिप पोर्शन को इंक्रिप्ट कर दिया गया सेशन की के जरिए। तो अब सेशन की को भी उसने साथ भेजना है, तो आगे सेशन की को उसने साथ अटैच कर दिया, लेकिन सेशन की खुद भी इंक्रिप्टेड है अलहदा से। E stands for encryption, KU stands for public key, B stands for receiver। तो रिसीवर की पब्लिक की से सेशन की को हमने इनक्रिप्ट कर दिया ताकि रिसीवर अपनी प्राइवेट की से सेशन की को रिकवर करके इस सारे को फिर डिक्रिप्ट कर सके। और फिर उसके ऊपर की आईडी लगा दी कि हमने आपकी एक रिसीवर की एक से ज़्यादा पब्लिक प्राइवेट कीज हो सकती हैं, तो फिर हमने की आईडी लगा दी रिसीवर की आईडी पब्लिक की कि हमने इस पब्लिक की से आपके इनक्रिप्ट किया और इसी के अगेंस्ट वाली प्राइवेट से आप डिक्रिप्ट कर दें। इतने पोर्शन को कहते हैं सेशन की कंपोनेंट, इधर से लेके इधर तक। इसमें से ये वाला कंपोनेंट जो है वो इनक्रिप्टेड है, ये वाला सारे का सारा सेशन की से इनक्रिप्टेड है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो बन जाएगा मैसेज, ये कंप्लीट मैसेज, उसको हम Radix64 से कन्वर्ट कर देंगे ताकि उसकी कंपैटिबिलिटी दूसरे S-MIME वगैरह से हो जाए। तो ये उसका फॉर्मेट ऑफ अ मैसेज है। अब कीज़ की बात होती जा रही थी, तो कीज़ एक्चुअली क्या है? हमारे पास दो की रिंग्स होते हैं सारे ईमेल सॉफ्टवेयर्स के अंदर और इवन ब्राउज़र्स के अंदर। हमारे पास दो की रिंग्स होते हैं। एक पब्लिक की रिंग होता है। की रिंग जिस तरह ओरिजिनल रियल लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मल्टीपल कीज़ डाली जाती हैं, तो इस तरह ही पब्लिक की रिंग है जिसमें मल्टीपल कीज़ होती हैं और प्राइवेट की रिंग है जिसमें मल्टीपल कीज़ होती हैं। प्राइवेट की रिंग जो होगा उसमें आपकी अपनी प्राइवेट की रिंग्स होंगी, ठीक है, और वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। और जो पब्लिक की रिंग होगा उसके अंदर जो आपने दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ कम्युनिकेट करते हैं उनकी पब्लिक की इकट्ठी करके रखी होंगी। जब आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप उसी वक्त उसकी पब्लिक की लेके आते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स होते हैं जिधर से कीज हम लेते हैं, पब्लिक रजिस्टर्स होते हैं, CA भी कहते हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। उधर से हम पब्लिक की जब वो एक दफ़ा आ जाती है तो हम स्टोर कर लेते हैं ताकि दोबारा हमें वो कीज़ ना लानी पड़े। तो बेसिकली की रिंग के अंदर जो फील्ड्स होती हैं वो टाइम स्टैम्प होती है। फॉर एग्जांपल T1 जब वो की बनी, की आईडी होती है, दैट इज़ आईडी किस तरह कैलकुलेट होती है, की होती है पब्लिक वाली, ठीक है, उस आई को आइडेंटिटी है जिसकी की है, ठीक है, आई एक पर्सन है और उसको मॉड लिया होता है 2⁻64 के साथ, यानी कि जो पब्लिक की होती है किसी भी एंटिटी की, इस केस में आई है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, KU ऑफ आई मॉड 2⁻64, जो भी रिजल्ट आता है वो यहाँ पे एज अ की आईडी लिख दिया जाता है। और उसके बाद उसकी पब्लिक की पड़ी होती है, पब्लिक की ओपन होती है, उसको इनक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं, और फिर इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे पास हमारी प्राइवेट की पड़ी होती है। प्राइवेट की इनक्रिप्टेड किस तरह होती है, उसको हमने इनक्रिप्ट किया होता है एक पासवर्ड के ज़रिए। जब भी आपको आपकी प्राइवेट की चाहिए होती है, जो एक्चुअली आप ईमेल का पासवर्ड डालते हैं, वो पासवर्ड का हैश लिया जाता है और उस हैश से उसको इनक्रिप्ट करके रखा गया होता है, और जब रिकवर भी करने जाते हैं तो उसी हैश से वो, यानी कि आपने जो ईमेल का पासवर्ड डाला उसका हैश लिया और उस हैश को यूज़ किया डिक्रिप्ट करने के लिए भी। तो ये इनक्रिप्टेड प्राइवेट की पड़ी होती है। और एंड पे यूज़र आईडी जो कि हमारे इस एग्जांपल में आई है। पब्लिक की रिंग में भी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं, टाइम स्टैम्प है, की आईडी सेम उसी तरीके से, फिर पब्लिक की पड़ी होती है। फिर ट्रस्ट फ्लैग है। ट्रस्ट फ्लैग होता है कि मसलन ट्रस्ट फ्लैग अगर ओके है तो वो सेफ टू कम्युनिकेट है उस पार्टी के साथ। अगर उसका ट्रस्ट फ्लैग ओके नहीं है, मसला उसकी ये एक्चुअली ये ईमेल सर्विसेज जो हैं इनके साथ ये चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। तो ये जब आप बाय करते हैं तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन से, CA उसको कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको एक ट्रस्ट फ्लैग देते हैं। अगर आप अपनी ही ये की रिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रस्ट फ्लैग नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें हैं, सिग्नेचर्स और ट्रस्ट सिग्नेचर्स भी इसमें आते हैं।
ये दोबारा से एक दफ़ा कि हम किस तरह साइन किस तरह करते हैं और इनक्रिप्ट किस तरह करते हैं, ये कीरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो सेंडिंग में पहले हम साइन करते हैं। PGP retrieves the sender's private key from the private keyring using your user ID as an index. PGP prompts the user for the passphrase to recover the and unencrypt the private key. जब ये आप प्राइवेट की लेने जाते हैं तो आपसे पासवर्ड मांगता है, तो आप पासवर्ड डालते हैं। एक्चुअली वो पासवर्ड भी डायरेक्ट उसको डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ नहीं होता, पासवर्ड का हैश लिया जाता है और हैश यूज़ होता है। क्योंकि जब ये प्राइवेट की स्टोर भी की थी इनक्रिप्टेड फॉर्म में, तब भी हैश लेके, पासवर्ड का हैश लेके उस हैश के जरिए इनक्रिप्ट करके स्टोर की गई थी। ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देती है। द सिग्नेचर कंपोनेंट ऑफ मैसेज इज कंस्ट्रक्टेड, जब ये आपने मैसेज किसी को सेंड करना हो और उसको पता हो कि मैसेज ऑथेंटिक है। नेक्स्ट है जी मैसेज को इनक्रिप्ट करना है। PGP जनरेट्स अ सेशन की एंड इनक्रिप्ट द मैसेज। PGP रिट्रीव द रेसिपिएंट्स पब्लिक की फ्रॉम द पब्लिक कीरिंग यूजर यूजिंग हर यूजर ID। तो अब रेसिपिएंट यानी कि जो रिसीवर है उसकी पब्लिक की हमने लानी है जब हमने सेशन की को इनक्रिप्ट करना है। द सेशन की कंपोनेंट ऑफ द मैसेज इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये इसका फ्लो है, ये उसी चीज़ की डायग्राम है। ये देखें यहाँ पे बड़ा क्लियर है, मैसेज है, मैसेज का हैश लिया गया, हैश को अब इनक्रिप्ट करना है। तो इनक्रिप्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, अपनी प्राइवेट की। तो ये हमारा प्राइवेट की रिंग था। अपनी प्राइवेट की के लिए हमने ID के ज़रिए अपनी की सिलेक्ट की। ये हमारे पास इनक्रिप्टेड प्राइवेट की पड़ी थी, ये की हमारे पास आ गई। अब वो इनक्रिप्टेड थी, उसको यूज़ करने से पहले डिक्रिप्ट करना है। तो डिक्रिप्ट करने के लिए वो हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो ये पासवर्ड डाला, पासवर्ड का हैश हुआ, हैश रिजल्ट डिक्रिप्शन में यूज़ होगा और हमारी की जो है वो डिक्रिप्ट हो गई। और वो डिक्रिप्टेड की को हमने यूज़ किया इस हैश को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हैश जो है इनक्रिप्ट हो गया और ये मैसेज और ये हैश इकट्ठा लग गया, ठीक है। और इधर से की ID जो है वो उठा के इसके साथ लगा दी गई ताकि रिसीवर को पता लगे कि हमने अपनी कौन सी प्राइवेट की ID के साथ इनक्रिप्ट किया है, उसी ID की पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट करेगा इस हैश को। तो यहाँ पे हमारा सिग्नेचर और मैसेज इकट्ठा हो गया। अब मैसेज को इनक्रिप्ट करना है, तो इनक्रिप्शन एल्गोरिथम में डाला, ठीक है, जो कि 3 डस था, 128 कास्ट था, जो भी है, और एक सेशन की डाली। RNG एक रैंडम नंबर जनरेटर एल्गोरिथम है जो रैंडमली कोई नंबर जनरेट करता है। तो यहाँ पे RNG को यूज़ किया इस केस के अंदर सेशन की को जनरेट करने के लिए 128 बिट। तो इस सेशन की के ज़रिए ये मैसेज इनक्रिप्ट हो गया। अब उस सेशन की को इनक्रिप्ट किया, ठीक है, किससे, पब्लिक की रिंग से। उसकी जो हमारे पास रिसीवर है उसकी एक पब्लिक की उठा के लाया। अब पब्लिक की ओपन पड़ी होती है, उसको डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट कर दिया सेशन की को, और ये वाले इनक्रिप्टेड मैसेज को हमने इसके साथ लगा दिया जो इनक्रिप्टेड सेशन की थी, और ये हमने सेंड कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये सेशन की जो है ये पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हुई है रिसीवर की, तो ये प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट हो सकेगी रिसीवर की, ठीक है। ये अब हमारे पास रिसीविंग एंड के ऊपर वही डायग्राम बनेगी, वही प्रोसेस बनेगा। डिक्रिप्शन द मैसेज ए, क्योंकि पहले ऑथेंटिकेशन हुई थी तो ऑथेंटिकेशन बाद में उतरेगी। एंड पे डिक्रिप्शन हुई थी तो जो एंड पे बॉक्स लगता है वो सबसे पहले उतरता है। तो डिक्रिप्शन एंड पे हुई थी तो अब डिक्रिप्शन पहले रिमूव होगी। PGP retrieves the receiver's private key from the private key ring using the key ID field in the session key component of the message as an index. PGP prompts the user for password to recover the unencrypted private key. PGP then recovers the session key and decrypt the message. Next is authentication. PGP retrieves the sender's public key from the public key ring using the key ID field in the signature key component of the message. PGP recovers the transmitted message digest, जो 7 हैश आया था वो उसने रिकवर किया, उसने नया हैश कैलकुलेट किया। PGP computes the message digest from received message and compare it to the transmitted message digest to authenticate। ये उसका प्रोसेस है कि अब रिसीविंग एंड के ऊपर हमने ये डायग्राम सेंडिंग एंड की देखी थी, अब रिसीविंग एंड पे वो सारा कुछ मिल गया। तो पहले डिक्रिप्शन होगी, फिर ऑथेंटिकेशन चेक होगी। तो डिक्रिप्शन के लिए
वो क्या करेगा, की आईडी के ज़रिए अपनी की ट्रेस करेगा कि किस की के साथ मैंने सेशन की करनी है अपने प्राइवेट की रिंग से, क्योंकि हमने भेजते वक्त उसकी पब्लिक की से इस सेशन की को इनक्रिप्ट किया था। अब रिसीवर को अपनी प्राइवेट की चाहिए उस सेशन की को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो प्राइवेट की रिंग से उसने अपनी की आईडी के ज़रिए की लोकेट की, उससे पीजीपी ने पासवर्ड मांगा, पासवर्ड का हैश लिया, हैश से उसने उसकी प्राइवेट की जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ी थी उसको डिक्रिप्ट किया, और वो डिक्रिप्टेड प्राइवेट की को यूज़ किया ये वाले सेशन की के ऊपर, सेशन की को डिक्रिप्ट करने के लिए, और सेशन की जो डिक्रिप्ट होके हमारे पास आ गई उसको यूज़ किया इस मैसेज डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो मैसेज डाइजेस्ट जब डिक्रिप्ट हो गई तो हमारे पास चीज़ें इस तरह आ गई, मैसेज आ गया, अब इनक्रिप्टेड डाइजेस्ट आ गई, हैश फंक्शन यानी कि हैश का जो रिजल्ट था, और सेंडर की आईडी। अब सेंडर की आईडी पब्लिक की में डाली कि सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया हुआ, मुझे सेंडर की पब्लिक की चाहिए। तो पब्लिक की रिंग में से जाके सेंडर की आईडी डाली, उसकी पब्लिक की लोकेट की जो कि अनइनक्रिप्टेड पड़ी होती है, उस पब्लिक की को यूज़ किया इस हैश डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए, इस मैसेज का दोबारा हैश कैलकुलेट किया और दोनों के रिजल्ट को कंपेयर किया। अगर रिजल्ट सेम है तो मैसेज ऑथेंटिक है। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन रिमूव होगी, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक होगी। तो ये ओवरऑल फ्लो था। स्टूडेंट्स, दिस इज अ समरी ऑफ टुडेज लर्निंग। वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ पीजीपी at sender's end and at the receiver's end for authentication, for confidentiality, and for both. Next, we have seen the importance of the placement of compression algorithm before or after confidentiality can have an impact on security. And then we have discussed how placing of compression algorithm before and after of signature, applying signature, can have impact on authentication of stored emails. In the end, we have discussed fields and working of public and private key rings maintained by PGP. See you in next session. Thank you for watching.